Welcome friends to video lecture Electrochemistry Part 3. Before videos, we will see some terminologies of the electrochemistry, conductance, conductivity, molar conductivities. All these topics we have to cover in the video lecture Electrochemistry 1 and 2. Now today we will see what is meant by electrochemical cell. Now, electrochemical cell, it consists of two metal parts, two metal plates, or these are made up of either carbon or graphite. These electronic conductors are dipped into an electrolytic or ionic solutions. We will also it called as a conductors. The electrolyte is in the form of pure liquid or in its aqueous state also. Now, when electrochemical reactions we have to consider, in that it is a redox reaction. Okay, we know redox reaction means oxidation and reduction. Both the processes are carried out simultaneously. That is the redox reaction. And when we will see the electrochemical cell, in that electrochemical cell, always redox reactions are carried out and there is a transfer of electron from one species to another. Now here we are using two electrodes. At one electrode oxidation takes place and at another electrode reduction reaction will takes place. Now these electrodes we are called it as an anode and cathode. At cathode reduction reaction takes place and at anode oxidation reaction takes place. Now here we are using a electrolytic solution either in fused state or in aqueous state also. These are the main basic ideas for electrochemical cell. Now there are two types of electrochemical cell. These are electrolytic cell and second one is galvanic or voltaic cell. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज फोर्स टू अकर बाय पासिंग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स. ठीक है, जो बैटरी होती है उससे हमें इस रिएक्शन के जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उसको अटैच करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास करना पड़ता है and then that current will passes through the solution. और इसमें जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी that will gets converted into the chemical energy. वो केमिकल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी. इस सेल में जो हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिव एंड को अटैच करते हैं बैटरी के और जो कैथोड होता है वो निगेटिव एंड को अटैच करते हैं. जैसे अगर इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इट विल कंटेन्स डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो हमने H2O2 सेल में भी पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. देन सेकेंड वन इज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड थर्ड इज मेटल प्लेटिंग. ठीक है, ऐसे अलग अलग हमें यहाँ पर इसके टाइप्स दिखाई देते हैं. ये हमें डिटेल में भी पढ़ना है कि इसका वर्किंग कैसे होता है, हाउ दिस सेल्स विल रिएक्टेड, ये सभी हमें इसमें देखना है. तो अभी ये सिर्फ हमने यहाँ पर इन शॉर्ट देखा हुआ है. देन गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होगी and because of this chemical reactions electrical energy is produced. तो ऐसे जो सेल होते हैं उसको हम लोग वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल बोलते हैं. then these cell involve conversion of chemical energy into the electrical energy. then anode of galvanic cell is negative and cathode is positive, क्योंकि इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं करना है, उसको प्रोवाइड नहीं करना है, तो वहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहा है. इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं,
ड्राई सेल, निकेल कैडमियम सेल, फ्यूल सेल, lead acid storage cell, etc. are the examples of galvanic or voltaic cell. Now electrolytic cell. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस. अब इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स क्या होगा? लिसिस मीन्स समथिंग विल गेट्स ब्रेक, कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्रेक हो रहा है. तो इसमें क्या होगा, जो आयोनिक कंपाउंड है वो आयोनिक कंपाउंड उसके आयंस में यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं या आयंस को वो सेपरेट कर रहे हैं. फिर वो आयंस एक्वस स्टेट में हो या फिर वो मोल्टन स्टेट में हो, बट जैसे ही यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ दैट आयंस विल टेक्स प्लेस. Na मीन्स जैसे प्लस और माइनस कटायन और अनायन इसमें फॉर्म हो जाएंगे. एंड दिस इज एन इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स यहाँ पर क्या किया है हमने, इलेक्ट्रिक करंट विल प्रोवाइडेड टू इट. मीन्स जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, इन दैट केस देर इज एन ब्रेकिंग ऑफ ionic compounds will takes place and it will forms a two types of ions, cation and anion. अब हमें यहाँ पर देखना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. अब मोल्टन स्टेट मीन्स क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है, बट अगर हम लोग उसको थोड़ा सा हीट करते हैं, इन दैट केस इट विल कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट. ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. तो दैट इज़ द मोल्टन स्टेट. और एक्वस स्टेट में क्या होता है, वहाँ पर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें ऐड करते हैं. दैट टाइम इट विल कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट. अब यहाँ पर हमें सबसे पहले मोल्टन स्टेट में देखना है इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है. देन वी हैव टू सी इलेक्ट्रोलिसिस इन aqueous NaCl. Now what is the basic principle of this electrolysis? In that case non-spontaneous chemical reaction takes place. मीन्स जैसे हम लोग यहाँ पर करंट पास करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट द केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी. अब उसके लिए हमें यहाँ पर सेल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. तो सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड ऐड किए हैं. अब ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड दीज आर मेड अप ऑफ आइदर कार्बन और ग्रेफाइट. इन दोनों में से कोई भी एक मटेरियल से हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोड यानी सिंपल एक रॉड होता है और जैसे वो बैटरी को हम लोग अटैच करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको हम लोग एनोड और कैथोड कह सकते हैं. अब यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कंटेनर हमने लिया है. इन दैट कंटेनर वी विल प्लेस अ फ्यूज्ड NaCl सॉल्यूशन. उसी में हम लोगों ने 2 यहाँ पर इलेक्ट्रोड ऐड किए हुए हैं. जो पॉजिटिव एंड को अटैच है बैटरी के दैट इज़ कॉल्ड एज द कार्बन एनोड, और जो नेगेटिव एंड को अटैच है उसको हमने कहा है कार्बन कैथोड. और ये जो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनके वायर वी विल कनेक्टेड टू द बैटरी. ठीक है, बैटरी को हमने उस तरीके से उसे कनेक्ट किया हुआ है. इन दिस वे वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस सेल. ना अब इसका वर्किंग कैसे होता है. अब हमने कहा था कि ये फ्यूज्ड NaCl है, इलेक्ट्रोलिसिस है, मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है. तो क्या होगा, ये जो NaCl है फ्यूज स्टेट में इट विल कन्वर्टेड इनटू द Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस. और जैसे यहाँ पर आयंस फॉर्म होते हैं वैसे ही यहाँ पर ये आयंस दे आर फ्री टू मूव. ठीक है, ये मूव होने के लिए फ्री हो जाते हैं जैसे आयोनिक फॉर्म में आते हैं. अब जब ये आयंस फॉर्म हुए हैं तो क्या होगा, जो Na प्लस आयंस हैं दीज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड. ठीक है, कैथोड को तरफ क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये अट्रैक्ट हो रहे हैं. एंड जो Cl माइनस आयन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दीज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एनोड. क्योंकि हमेशा जो अट्रैक्शन होता है दैट इज़ इन द अपोजिट पोल. इसलिए कैथोड हमारा नेगेटिव है तो उसकी तरफ Na प्लस जा रहा है, और जो एनोड हमारा पॉजिटिव है उसकी तरफ Cl माइनस आयन्स यहाँ पर आ रहे हैं. अब ये चार्ज पार्टिकल्स हैं Na प्लस
Cl माइनस, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इनका उस इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपोजिशन होता है वैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना या चार्ज फ्लो होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। मीन्स देयर इज़ अ माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और इस तरीके से जब हम लोग इसकी रिएक्शंस देखते हैं तो कैसे यहाँ पर माइग्रेशन होता है आयंस का, ये हमें पता चल जाएगा। अब ये जो हमें इसका मेकनिज़म पढ़ना है कि किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, तो हम लोग इसको दो हाफ सेल में डिवाइड करते हैं। इस कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वो एक हाफ पार्ट, और जो एनोड पर रिएक्शन होती है वो अनदर पार्ट। नाउ फर्स्ट वी विल सी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एनोड की तरफ कौन से आयंस माइग्रेट हो रहे हैं, यहाँ पर Cl माइनस आयंस जो है वो यहाँ पर माइग्रेट हो रहे हैं। अब ये जो Cl माइनस आयंस यहाँ से निकल रहे हैं, तो जैसे दो Cl माइनस आयंस अगर निकल गए हैं देन दे विल फॉर्म अ ट्वाइस Cl, और दो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से माइग्रेट हो जाएंगे, वो बैटरी की तरफ मूव होंगे। और ये जो दो Cl हैं दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ Cl2। इसलिए हमें यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन इसका दिख रहा है। ओवरऑल रिएक्शन में हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर दिस 2Cl माइनस विल गिव्स अस Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ओवरऑल ऑक्सीडेशन। क्या कहा है हमने इसे, ओवरऑल ऑक्सीडेशन इसे कहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इवॉल्व, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर इवॉल्व हुए हैं ये क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन कौन सक करेगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर सक्ड बाय द बैटरी। ठीक है, बैटरी पर पुशेस, और एक बार उसने बैटरी ने उसको पुश कर दिया तो बैटरी में ही वो स्टोर्ड हो जाएंगे क्या, नहीं, दे विल पुशेस टूवर्ड्स द कैथोड। वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आया, कैथोड की तरफ आए, और कैथोड से वो इलेक्ट्रॉन फिर से सॉल्यूशन में आकर ये जो साइकिल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन एट एनोड। अब नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि हमें पता है दिस वन इज द रेडॉक्स रिएक्शन, इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस यहाँ पर होना कंपलसरी है। तो इसलिए अभी कौन सी देखनी है हमें, रिडक्शन रिएक्शन देखनी है। अब रिडक्शन रिएक्शन कहाँ हो रही है हमारी, कैथोड पर। अब कैथोड की तरफ कौन से आयंस जा रहे थे हमारे, Na+ आयंस। जो इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड से निकला था बैटरी के थ्रू वो पहुंच गया था कैथोड पर। वो कैथोड किसमें जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, और इधर से Na+ आयंस निकले हुए हैं, तो ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर न्यूट्रल सोडियम फॉर्म हो जाएगा। ओके, दिस रिएक्शन विल अकर्ड ऑन द कैथोड। अब हमें नेट रिएक्शन निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, और जब हम लोग इसे ऐड करते हैं दैट टाइम वी आर गेटिंग द रिएक्शन 2Na plus 2Cl minus will gives us twice Na plus Cl2 gaseous, and this is called as overall cell reaction। ठीक है, समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, इन दोनों सेल को हमने कंबाइन किया क्योंकि एक ही सेल में ये कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, इसलिए। तो हमें क्या मिला फिर यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, देन बचा हुआ हमने लिख लिया ट्वाइस Na+ लिक्विड प्लस 2Cl माइनस लिक्विड विल गिव्स अस 2Na plus Cl2 गैस जो होता है वो यहाँ पर रिलीज्ड हो जाता है। अब अगर इसका हमें रिजल्ट मेंशन करना है तो हम लोग किस तरीके से मेंशन करेंगे कि जो क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ है वो उसका कलर है पेल ग्रीन कलर, और ये एनोड के पास से यहाँ से रिलीज हो रहा है। जो सोडियम है मोल्टन सिल्वरी वाइट सोडियम, वो किस पर डिपॉजिट हुआ है यहाँ पर, कैथोड पर, वो हमें कैथोड पर मिल जाएगा। और डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl इनटू मेटालिक सोडियम
एंड क्लोरीन गैस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। दस यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग सप्लाइड कर रहे हैं बाय द बैटरी टू फोर्स द रिएक्शन होने के लिए हमने यहाँ पर इसमें करंट सप्लाई किया हुआ है। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl. Are you understand? Now we will see electrolysis of aqueous NaCl. पहले मैंने आपको बताया था aqueous NaCl means water is added to it. अब जैसे हमने मोल्टन NaCl में देखा था, वहाँ पर सिर्फ हमारे इसमें Na+ और Cl- आयंस फॉर्म हुए थे। बट हमें पता है यहाँ पर अगर वाटर आया है, वाटर मॉलिक्यूल्स आए हैं, देन वाटर इज ऑल्सो एन आयोनिक कंपाउंड। उसके भी आयंस यहाँ पर फॉर्म होंगे, मीन्स दो टाइप्स के पॉजिटिव आयंस, दो टाइप्स के नेगेटिव आयन, Na+, Cl-, H+, OH-। ऐसे दो टाइप्स के कटायंस और अनायंस यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहे हैं। अब इस सेल का हमें कंस्ट्रक्शन देखना है, तो सेम जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हमने पहले देखा था वैसा ही सेम कंस्ट्रक्शन है, वैसे ही इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। बट इंस्टेड ऑफ मोल्टन NaCl यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया है एक्वस NaCl। सिर्फ दोनों में इतना ही डिफरेंस है। नाउ हाउ दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, दैट वी विल सी। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहाँ हो रही है? यहाँ पर कैथोड पर हो रही हैं। अब कैथोड पर जैसे रिडक्शन होता है तो यहाँ पर दो टाइप्स के आयंस फॉर्म हो रहे, ऐसा हमने पहले ही देखा था। अब क्या होगा, जो Na+ आयंस हैं दे विल एब्जॉर्ब एन इलेक्ट्रॉन, वो में हमें यहाँ पर देंगे Na सॉलिड। और इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 2.71 वोल्ट। वही अगर हम लोग वाटर का देखते हैं तो वाटर का क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर अगर इलेक्ट्रॉन्स लेता है इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस प्लस OH- एक्वस OH- आयंस, और इसकी E0 वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका है 0.83 वोल्ट। अब ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है रिडक्शन ऑफ वाटर इज हायर देन दैट फॉर रिडक्शन ऑफ Na+। ठीक है, वाटर का यहाँ पर ज़्यादा है और Na+ का यहाँ पर कम है। उससे हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, देयर हैज़ अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस द Na+ आयंस। और इसीलिए जो सेकेंड रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ वाटर इज द कैथोड रिएक्शन व्हेन द एक्वस NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक्वस NaCl को हम इलेक्ट्रोलाइट करते, तो सेकेंड रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, वो मेन होगी। और यहाँ जो फर्स्ट वाली है Na+ की वो यहाँ पर हमें नहीं दिखेगी। ना ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, यहाँ पर भी दो आयंस हैं। अब जब Cl- है उसमें से Cl2 गैस रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएगी। उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है -1.36 वोल्ट। और वही अगर वाटर का हम लोग देखते हैं then it will evolve oxygen gas plus 4H+ ions plus 2 electrons and इसका E0 ऑक्सीडेशन है -0.4 वोल्ट। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Cl- आयंस। वाटर की टेंडेंसी ज़्यादा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने की, और यही हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। एंड एक्सपेरिमेंटली देयर इज ए इवोल्यूशन ऑफ Cl2 गैस। दिस सजेस्ट दैट एनोड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ Cl2 गैस। दिस इज बिकॉज ऑफ द ओवर वोल्टेज। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज इसको बैटरी से भी सप्लाई कर रहे हैं, और जो एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो जो क्लोरीन गैस इवॉल्व होने का क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है दैट रिडक्शन इज ऑफ क्लोरीन गैस। अगर थियोरेटिकली हम लोग देखते हैं
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का ज़्यादा है, क्लोरीन का कम है। बट थियोरेटिकली जब हम लोग देख रहे हैं तो उसमें क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है, इसलिए जब हम उसको थरोली स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ओवर वोल्टेज होने की वजह से देयर इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन गैस विल टेक्स प्लेस। अब ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है प्लस वाटर का रिडक्शन टेस्ट, दोनों रिएक्शंस हम लोग ऐड करेंगे। इन दैट केस वी आर गेटिंग द रिएक्शन ट्वाइस Cl aqueous plus twice H2O liquid will gives us Cl2 gas evolved plus H2 gas evolved plus twice OH minus aqueous। ऐसे दो टाइप्स के गैस यहाँ पर इवॉल्व होते हैं। अब रिजल्ट्स में जब देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हो रहा है फ्रॉम कैथोड, कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, एनोड से क्लोरीन गैस निकलेगा, और जो Na+ आयंस यहाँ पर अनरिएक्टेड है हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में वो कंबाइन होंगे OH माइनस आयंस के। ये जो यहाँ पर हमें OH माइनस आयंस दिख रहे हैं इनके साथ ये Na+ आयंस यहाँ पर कंबाइन होंगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ओके, दिस इज द रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ना यहाँ पर एक हमारे लिए इंफॉर्मेशन है कि जो सी वाटर होता है दैट इज़ द सोर्स ऑफ मिनिमम 3 लाख टन्स ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग जो सी वाटर होता है उससे 3 लाख टन्स मैग्नीशियम हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन अनदर इज द इलेक्ट्रोकेमिकल आर्ट। उसमें क्या है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड स्ट्रोंशियम कैन बी कलर्ड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कॉल्ड एनोडाइजिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग प्रोसेस भी सेम इसी तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस यूज करके इसमें करते हैं। इन दिस प्रोसेस मेटल एनोड ऑक्सीडाइजेस टू गिव मेटल ऑक्साइड कोट, और ये जो ऑर्गेनिक डाई हैं उसमें वो ऑर्गेनिक डाई को उसमें ऐड करते हैं एंड देन this dye will soak forming a spongy surface of coating and become trapped with the hardening of the metal oxide surface। ठीक है, उस पर मेटल का ये कोटिंग दिया जाता है उसमें डाई मिक्स करके, और फिर से उसको हार्ड होने के लिए उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकेमिकल आर्ट। देन नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे हम लोग फैराडेज लॉ पढ़ते हैं सेम उसी टाइप के यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। अब यहाँ पर फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है हमारे इसमें, द मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग stoichiometry of the half reaction at the electrode। मीन्स इलेक्ट्रोड पर जो यहाँ पर हाफ रिएक्शंस हुए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, ये अगर हमें पता है, उसकी स्टाइकोमेट्री अगर हमें पता है तो उसमें से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा कितना मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर कंज्यूम हुआ है या कितना प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। For that we are seeing the different steps for it। फर्स्ट स्टेप हमारे इसमें है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, कितना इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो करंट हम लोग पास करते हैं और जितने टाइम के लिए हमने ये करंट पास किया हुआ है, ये अगर दोनों हम लोग मेजर कर सकते हैं। बैटरी को अटैच किया तो कितना करंट पास हो रहा है, टाइमिंग अगर देखते, टाइमिंग पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए हम देखते हैं तो टाइमिंग भी हम लोग उसका मेजर कर सकते हैं। तो ये दोनों अगर हमें पता है तो कितने क्वांटिटी में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, दैट वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला Q = I × T।
Q जो है करंट दैट इज इन कूलम, I करंट एम्पियर एंड T मीन्स यहाँ पर सेकेंड में वो काउंट करते हैं. देन सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास. कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पास हुए हैं वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कितनी मोल एक्चुअली पास हुए उसके लिए वी आर यूजिंग द फार्मूला Q डिवाइडेड बाय 96500 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इससे हम लोग इसे निकाल सकते हैं क्योंकि 1 मोल का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 96500 कूलम्स. ठीक है, इसलिए हम जिसको हम लोग 1 फैराडे भी बोलते हैं. तो इसके अकॉर्डिंगली ये फार्मूला हमें यहाँ पर मिलता है. Q इज इक्वल टू moles of electron actually passed is equal to Q divided by 96500 coulombs per mole electrons. Now third step is कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. कितने मोल्स यहाँ पर फॉर्म हुए हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो रिएक्शन होती हैं दैट रिएक्शन वी हैव टू कंसिडर. यहाँ पर रिएक्शन हमने कंसिडर किए. कॉपर आयंस जो हैं that will accept 2 electrons and it will forms a solid copper. अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ अगर हमें मोल प्रोडक्ट उसका निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि कितना करंट हमने पास किया है फॉर हाउ मच टाइम. तो हमारे पास फार्मूला है ही Q इज इक्वल टू I इंटू टी. अब मोल रेशो यहाँ पर जब हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जितने मोल्स प्रोडक्ट करके फॉर्म हुए हैं वो और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड. ठीक है, जो सेकेंड स्टेप में हमने कैलकुलेट किए हैं तो ये है यहाँ पर उसका रेशो हमें लेना है. मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं, और कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पास किए हैं ये अगर हमें पता हो तो हम लोग मोल रेशो निकाल सकते हैं. अब कॉपर के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो कॉपर के लिए क्या हो रहा है, एक यहाँ पर जब हमने कॉपर आयन लिया हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं. दैट्स वाई इट्स मोल रेशो इज इक्वल टू 1/2. अब मोल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है फॉर दैट वी आर यूजिंग मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास्ड, जो हम लोग निकालेंगे Q डिवाइडेड बाय 96500 से, और मोल रेशो जो हमने ऊपर निकाला हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर Q की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं देन इट इज़ फॉर्म अ I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय मोल रेशो. इससे हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. देन कैलकुलेशन ऑफ मास प्रोडक्ट. अब मास प्रोडक्ट निकालना है मीन्स यहाँ पर हमें उसके मोलर मास से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जो भी मास प्रोडक्ट हमने यहाँ पर निकालना है वो वेट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हमने स्टेप 3 में निकाला हुआ है उसको अगर हम लोग उस एलिमेंट्स के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस वी आर गेटिंग दिस मोलर मास. नाउ हियर यह फॉर्मूला में हमने यहाँ पर पुटअप किया हुआ है I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल रेशो मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द प्रोडक्ट. इससे हम लोग इसे निकाल सकते हैं. अब सेकेंड कंडीशन, जो फर्स्ट हमने देखा था कि मास प्रोडक्ट पर मास कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुए, कितने रिएक्टेंट यहाँ पर रिएक्ट हुए हैं, उसको हम लोग कितने टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट पास किया है उससे हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते थे. ये हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखा. अब सेकंड पार्ट में यहाँ पर देखते हैं कि सपोज़ हमने 2 सेल्स ली हुई है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने लिया है और इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है. ठीक है, 2 डिफरेंट सेल्स हमने लिए, उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया. अब इन दोनों सेल्स में से हम लोग सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं. तो हमें ऐसा ऑब्जर्व होगा कि दोनों इसमें जो मास फॉर्म हुए हैं वो हमें यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं. जो द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड ऑफ द 2 सेल्स आर रिलेटेड एज गिवन बिलो. तो अभी वेट हमें पता चल गया. फर्स्ट इसमें हमने देखा कि वेट कैसे निकालते हैं. जैसे वेट
एक हमने दो कंपाउंड है हमारे, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है हमारे पास, एक हमने लिया W1, दूसरा लिया W2। तो W1 यहाँ पर क्या बन जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 96500 इंटू मोल रेशो ऑफ 1 इंटू M1, दैट इज़ द मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट 1। उसको अगर हम लोग रीअरेंज करते हैं, देन वी आर गेटिंग Q डिवाइडेड बाय 96500 इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय मोल रेशो ऑफ 1 इंटू M1, मोलर मास ऑफ M1। सेम उसी तरीके से हम सेकेंड सेल में भी निकालेंगे, दैट इज़ W2। फिर से वहाँ पर क्या हो जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय मोल रेशो ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय M2। और जब हम लोग यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन रखी हुई थी कि दोनों में से सेम करंट यहाँ पर पास हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है, ये टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ सेम दिखती है, Q डिवाइडेड बाय 96500। अगर हमें पता है दोनों इक्वेशंस के अगर RHS सेम है या LHS सेम है, तो उसका RHS भी यहाँ पर सेम होगा। उसी तरीके से जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो M1 इज इक्वल टू M2 हम लोग इसे बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में Q डिवाइडेड बाय 96500 ये सेम होता है। और उसी वजह से W1 डिवाइडेड बाय मोल रेशो ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ 1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय M2। ये इक्वेशन यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि दोनों में जितना भी सब्सटेंस यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है उसको हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके, दीज आर द टू क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 101 एंड 102 पर कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको आपको थरोली स्टडी करना है। अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ जो एक्सरसाइज में दिए हैं ऐसे दो न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नाउ अवर फर्स्ट इज व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर विल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.4 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन in 1 hour. Given molar mass of copper is equal to 63.5 ग्राम पर मोल। अब सब्सटेंस का वेट कितना दिया है, मास कितना दिया हुआ है, 2.4 ग्राम। टाइमिंग 1 आवर। इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस टी इन सेकेंड। और हमें मोलर मास यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें हमें रिएक्शन सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन क्या है हमारी, किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ पर, Cu2 प्लस का। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मोल रेशो आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज कितने हैं हमारे, 1 है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने पास कर रहे हैं हम लोग, 2। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं, अवर मोल रेशो इज 1/2 मोल। Same now we are using the formula W is equal to I into T divided by 96500 multiplied by mole ratio into molar mass of copper. Put up the values. मोल रेशो लिखेंगे 1/2, I की वैल्यू हमें निकालनी है, वेट हमें दिया है 2.4, टाइम 1 आवर, उसके हो गए 3600 सेकेंड्स, और मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5। रीअरेंज करेंगे इक्वेशन, देन वी आर गेटिंग द आंसर 2.03 एम्पियर। कितना करंट हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं, 2.03 एम्पियर।